Assalamu alaikum. The topic of presentation today is malignant tumors of lid and their treatment and eyelash disorders. By the end of this presentation, the audience will be able to describe treatment options of malignant tumors of lid and list the eyelash disorders, identify and discuss causes of eyelash disorders, and discuss in detail management of misdirected lashes. ट्रीटमेंट ऑफ malignant ट्यूमर्स सेवरल टेक्निक्स उसमें यूज़ कर सकते हैं. अगर वो लेस एक्सटेंसिव है तो बायोप्सी से भी सिर्फ रिमूव हो सकता है. सर्जिकल एक्सिजन विद और विदाउट रिकंस्ट्रक्शन, and if surgical excision is not possible, or as an adjuvant we can use radiotherapy, and for small lesions we can use cryotherapy. What are the different types of biopsy? Incisional or excisional biopsy. इसके अलावा भी होती हैं एस्पायरेशन साइटोलॉजी, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी. Broadly incisional or excisional हम कहते हैं. If only a part of the lesion is removed, it is called incisional biopsy. It can be performed with the help of a blade in which only a part or superficial part of the lesion is taken if the lesion is superficial, involving the epithelium or the epidermis only. This is called shave biopsy. If the lesion is deep, a part of the lesion can be taken with the help of a Keyes punch, which is called punch biopsy. Excisional biopsy can also be taken superficially or full thickness. Superficial biopsy is taken by the method of shave biopsy, and if the lesion, in case of seborrheic keratosis or papillomatous lesions, and if the lesion is deep and it's not only involving the epidermis, then a full thickness skin specimen has to be taken. There are several procedures for labeling the tissue. First of all, a pre-cut board can be used. For the medial margin, M shape is produced, and for superior margin, S shape is produced. On the board, the specimen is attached with the help of threads. For lateral margin, long thread is used, superior margin, short thread is used, and inferior margin, double knots are used. Similarly, clips can also be attached to these threads. क्योंकि लॉन्ग थ्रेड जो होता है वो लैटरल मार्जिन के साथ होता है, उसमें 3 क्लिप्स लग सकते हैं. ठीक है. इंफीरियर मार्जिन जो इसमें डबल नॉट्स होती हैं, उसके साथ हम 2 क्लिप्स लगाते हैं, डबल नॉट्स और 2 क्लिप्स. और सुपीरियर मार्जिन देखिए शॉर्ट थ्रेड होता है, तो उसमें हम 1 क्लिप लगाते हैं. सर्जिकल एक्सिजन फॉर स्मॉल ट्यूमर्स, as I mentioned, excision biopsy alone can be useful for this, and as it is small, direct closure is possible. Small BCC, excision of tumor plus 2 to 4 millimeter margin of normal tissue, as mentioned. And large BCC अगर है तो SCC और SGC है, melanoma है, तो उसमें ट्यूमर एक्सिजन के साथ लार्ज डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से रिकंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड. But before that, we need to rule out if tumor is present or not. Clearance is very important before reconstruction. Histopathological diagnosis, conventional paraffin embedded specimen हो सकता है उसमें, या स्टैंडर्ड फ्रोजन सेक्शन होते हैं, या तीसरा मोज माइक्रोग्राफिक सर्जरी होती है. कन्वेंशनल पैराफिन के ब्लॉक के अंदर स्पेसिमेन को एम्बेड करते हैं. इसमें होता है कि ज़्यादा टाइम लगता है. ऑब्वियसली जब हमने एक्सिजन कर दिया ट्यूमर की, तो हम उसको भेजेंगे फॉर हिस्टोपैथोलॉजी. वहाँ पे पैराफिन एम्बेडिंग करेंगे पहले स्पेसिमेन की, फिर उसकी रिपोर्ट काफ़ी दिनों बाद आती है. जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो हमें पता चलेगा कि इसमें ट्यूमर फ्री मार्जिन हैं क्या, ट्यूमर पॉजिटिव मार्जिन है. उसके बाद हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे. लेकिन हम रैपिड प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, तो फ्यू डेज़ में अगर रिपोर्ट आ जाए तो हम अर्लियर रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. अगर स्टैंडर्ड फ्रोजन सेक्शन है, उसमें ड्यूरिंग द सर्जरी भी हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. इसमें क्या होता है कि हम उसी तरह स्पेसिमेन को लैब में भेजते हैं. वहाँ पे एक मशीन होती है, क्रायोस्टैट मशीन. वो इंस्टेंटली उस स्पेसिमेन को फ्रीज करती है -13 डिग्री फ़ारेनहाइट और -25 डिग्री सेंटीग्रेड. एज इट इज़ फ्रोजन, हम उसके सेक्शंस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोटोम, एंड उसको इंस्टेंटली हम एग्जामिन कर सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप वेदर टू सी इट इज ट्यूमर पॉजिटिव और ट्यूमर फ्री. वो रिपोर्ट इंस्टेंटली जाती है बैक टू द ऑपरेशन थिएटर, एंड पता चल जाता है कि वो ट्यूमर फ्री है कि ट्यूमर पॉजिटिव है. और सेम डे रिकंस्ट्रक्शन इज़ पॉसिबल. अगर ट्यूमर पॉजिटिव है, फर्दर सेम डे एक्सिजन करेंगे. अगर ट्यूमर नेगेटिव है तो रिकंस्ट्रक्शन डायरेक्टली करेंगे. इसमें क्रायोस्टैट और माइक्रोटोम यूज होता है. फिर मोज माइक्रोग्राफिक सर्जरी है. इसमें पहले इंडिकेशन ये वाली है
अगर वो डिफ्यूज ग्रोथ है जिसका हमें पता नहीं चल रहा कि इसकी मार्जिन कहाँ पे एंड हो रही है, तो हम टिश्यू को एकदम सैक्रिफाइस नहीं कर देंगे, हम उसको लेयर बाय लेयर रिमूव करेंगे। इसमें भी फ्रोजन सेक्शन यूज़ होता है बिकॉज इट इज़ क्विक एंड हमें पता चल जाएगा फ़ौरन। बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि हम एक लेयर निकालेंगे फिर दूसरी लेयर निकालेंगे। मैक्सिमम ट्यूमर इज़ रिमूव्ड बट मिनिमम टिश्यू इज सैक्रिफाइस्ड। रिकरेंट ट्यूमर्स हैं, उसमें पहले ही हमने एक डिफेक्ट क्रिएट किया हुआ है, उसका पहले ही टिश्यू लॉस हुआ हुआ है, तो हम माइक्रोग्राफिक सर्जरी को प्रेफर करेंगे। इसके अलावा मीडियल एंड लैटरल कैंथाई जो हैं, क्योंकि मीडियल कैंथस के करीब लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम होता है जो कि बहुत बहुत असेंशियल पार्ट है। इसी तरह लैटरल कैंथस जो है इट कैन डिस्टर्ब कॉस्मेसिस, दैट्स व्हाई माइक्रोग्राफिक सर्जरी इज यूज्ड। Sclerosing VCC, SCC both have irregular margins. That's why we prefer most micrographic surgery. अब रिकन्स्ट्रक्शन जो होती है वो डिफेक्ट के साइज के हिसाब से होती है। स्मॉल डिफेक्ट्स का मतलब है कि लेस देन 1/3 ऑफ द आईलिड इज इन्वॉल्व, जैसे इसमें हमें नजर आ रहा है। इसमें हम डायरेक्ट क्लोजर भी कर सकते हैं क्योंकि वो स्मॉल डिफेक्ट है तो एजेस जो हैं अप्रॉक्सीमेट हो सकते हैं। If necessary, lateral canthelysis can be done to make the skin more flexible so that the edges can be approximated if the defect is present centrally. Canthelysis क्या होता है? इसमें होती है कैंथेक्टमी प्लस कटिंग ऑफ द लोअर लिम्ब ऑफ द लैटरल कैंथल टेंडन। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया हुआ, पहले हम मार्क करेंगे इंसिजन को जहाँ पे हमने इंसिजन लगानी है। उसके बाद हम पेंटागोनल शेप्ड ट्यूमर इज एक्साइज्ड एंड देन डायरेक्ट क्लोजर इज डन बिकॉज द डिफेक्ट इज स्मॉल। मॉडरेट साइज डिफेक्ट्स होते हैं, उसमें अप टू हाफ ऑफ द आईलिड is involved. For that, tensile semicircular flap is used. Because this defect cannot be closed directly, a flap has to be created so that the edges can be approximated. इसमें भी हम पहले क्या कर रहे हैं, इंसिजन को मार्क किए, पहले हमने एक्सिजन किया ट्यूमर की, उसके बाद मॉडरेट साइज डिफेक्ट है, उसके बाद हमने फ्लैप की इंसिजन को मार्क किया, फ्लैप को रिफ्लेक्ट किया डीप टू द ऑर्बिकुलरिस मसल एंड हमने कैंथेक्टमी कर दिया। लैटरल कैंथन टेंडन का जो लोअर लिम्ब है उसको कट कर दिया। उसके बाद जो फ्लैप का एज है हमने लैटरल कैंथल टेंडन के दूसरे लिम्ब के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, इससे क्या हो गया कि जो स्किन है वो ज़्यादा अवेलेबल हो गया, डायरेक्ट क्लोजर पॉसिबल हो गया। इसी तरह फिर हमने फ्लैप को भी क्लोज कर दिया। 3 मंथ्स बाद ये सारी अपीयरेंस आ 6 मंथ्स बाद ये सारी अपीयरेंस आ गई। लार्ज डिफेक्ट्स में ओवर हाफ ऑफ द आईलिड इन्वॉल्व है अगर, तो उसमें हमने एंटीरियर लिमेलर कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ती है, पोस्टीरियर लिमेलर कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ती है। जो पोस्टीरियर लिमेलर कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर ह्यूज टार्सो कंजंक्टिवल फ्लैप यूज होता है। अब ये फुल थिकनेस डिफेक्ट है और ये लार्ज है, मोर देन हाफ ऑफ द आईलिड है। इसमें हमने क्या किया, ह्यूज टार्सो कंजंक्टिवल फ्लैप यूज़ किया है पोस्टीरियर लिमेलर रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और हमने अपर लिड का ग्राफ्ट, अपर लिड से ग्राफ्ट लिया, स्किन ग्राफ्ट for anterior lamellar reconstruction. First of all, tarsoconjunctival flap is cut from the upper lid. Tarsus और conjunctiva का पूरा एक flap लिया that is attached to the upper lid still. That is why it's called flap. Otherwise graft कहेंगे उसे। ठीक है, फिर उसको हमने रिफ्लेक्ट करके अटैच कर दिया with the defect, posterior lamella of the defect. जब वो वहाँ पे अटैच कर दिया उसके बाद हमने एंटीरियरली भी तो रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए हमने ऊपर से अपर लिड से एक ग्राफ्ट ले लिया स्किन का, लोकल स्किन ग्राफ्ट, और उसको अटैच कर दिया, सूचर कर दिया एज एंटीरियर लिमेलर रिकंस्ट्रक्शन। जब फुल हीलिंग हो जाती है 4 to 6 वीक्स बाद हम इसको सेपरेट कर देते हैं और ये इसकी 3 मंथ्स बाद की अपीयरेंस है। अब फ्लैप और ग्राफ्ट में फ़र्क क्या होता है? मतलब ग्राफ्ट जो है वो रेसिपिएंट पे रिलाई कर रहा होता है। ग्राफ्ट हम मोस्टली लेते हैं स्किन के, फ्लैप हम किसी भी टिश्यू के ले सकते हैं, मसल के, स्किन के। It depends on the graft, depends on recipient site organization, and flap has its own blood supply because it's still attached. And graft is cosmetically poor because it can discolor or contract. But flap, as it has a good blood supply,
It has a better color take and less likely to contract. Because graft is mostly thin, so it is less adaptable to weight bearing, and flap mostly thicker होते हैं, उसमें it is more adaptable to weight bearing. As the graft relies on the blood supply of the recipient, it is less able to survive. उसकी graft take भी कम होती है, उसका survival भी कम होता है, उसका failure भी ज़्यादा होता है. Flap can be used on a bed with questionable nutrition. उसकी nutrition है या नहीं है, irradiated tissue है, उसके बाद भी हम requires pressure graft क्योंकि हमें approximate करना होता है recipient bed के साथ, तो इसलिए हम उसकी pressure dressing करते हैं. फ्लैप जो है उसमें प्रेशर ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है. ग्राफ्ट फ्लैप इज़ बेटर फॉर ब्रीदिंग डिफेक्ट्स. पोस्टीरियर लमेलर रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम अभी तो हमने फ्लैप लिया ना, ह्यूज टार्सल कंजंक्टिवल फ्लैप, उसके बजाय हम फ्री टार्सल ग्राफ्ट भी ले सकते हैं अगर क्वेश्चनेबल न्यूट्रिशन नहीं है, या फिर हम किसी और एरिया का भी ले सकते हैं. बफल म्यूकस मेम्ब्रेन ले सकते हैं, हार्ड पैलेट का ले सकते हैं. एंटीरियर के लिए हमारे पास और कौन सी ऑप्शन है, लोकल स्किन फ्लैप भी उसमें ले सकते हैं, इससे पहले हमने बताया. फिर है लेट्स से फेयर अप्रोच. इसमें क्या होता है, इसमें हम सेकेंडरी इंटेंशन से हील होने देते हैं टिश्यू को, बिकॉज द एजेस कैन नॉट बी अप्रॉक्सीमेटेड completely, so the edges are approximated as far as possible and the remaining defect is allowed to heal by secondary intention. रेडियोथेरेपी जो है उसको हम कभी भी फर्स्ट हमारी ऑप्शन नहीं होती, बिकॉज सर्जरी और रेडियोथेरेपी को अगर हम कंपेयर करें तो इसके बाद ज़्यादा रिकरेंस होती है. इसके अलावा क्योंकि इरेडिएटेड टिश्यू के अंदर हिस्टोलॉजिकल कंफर्मेशन इज आल्सो नॉट वेरी इजी एंड इट डज नॉट अलाउ, सो फ्रोजन सेक्शन भी इसमें खैर सर्जरी तो करेंगे तो फ्रोजन सेक्शन नहीं करेंगे. उसके बाद इरेडिएटेड टिश्यू पुअर हीलिंग डिफिकल्ट टू ट्रीट सर्जिकली. अगर इरिटेशन हो चुकी है एक दफ़ा उसके बाद उसको सर्जिकली ट्रीट करना भी ज़्यादा मुश्किल होता है. इंडिकेशंस क्या होती हैं रेडियोथेरेपी? रेडियो ठीक है, ठीक. इंडिकेशन यही है कि पेशेंट या तो सूटेबल ही नहीं है या वो चाहता ही नहीं है सर्जरी करवाना. उसके बाद रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर है जो ज़्यादा अच्छा रेडियोथेरेपी को करेगा रिस्पॉन्ड, जैसे कि PTOSIS होगा. इसके अलावा अगर हमने सर्जरी कर दी और उसके बाद हमें लग रहा है कि रिकरेंस हो सकती है तो एज एन एडजुवेंट हम यूज़ करेंगे. व्हाट इज़ एडजुवेंट एंड व्हाट इज़ नियो एडजुवेंट? हाँ, नियो एडजुवेंट जो है वो सर्जरी से पहले होता है और एडजुवेंट सर्जरी के बाद होता है. फिर ऐसा ट्यूमर है जो डिसेमिनेट हो चुका है, मेटास्टेसाइज हो चुका है, तो उसमें एज पैलिएटिव ट्रीटमेंट जस्ट टू रिड्यूस द साइज ऑफ द ट्यूमर. कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये सारी मीडियल कैंसर लीजन्स हैं क्योंकि उसमें लैक्रिमल कैनालिकुलर डैमेज का ज़्यादा रिस्क होता है. अपर आईलिड ट्यूमर्स में कंजंक्टिवल केराटिनाइजेशन का होगा और एग्रेसिव ट्यूमर्स जो सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा है दैट इज़ रेडियो रेजिस्टेंट, सो हम उसमें नहीं बनेंगे. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रेडियोथेरेपी सबसे पहले हम आगे से स्टार्ट करेंगे. मैडरोसिस हो जाएगा, आईलैश लॉस स्टार्ट हो जाएगा पेशेंट को, कॉस्मेटिकली उसके लिए नहीं अच्छा. स्किन डैमेज हो जाएगी, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट स्टेनोसिस मीडियल कैंथल एरिया पे अगर हमने किया. कंजंक्टिवल केराटिनाइजेशन अगर हमने अपर लिड पे या कंजंक्टिवा को एक्सपोज करके किया. उसके बाद ड्राई आई, केराटोपैथी, कैटरैक्ट एंड रेटिनोपैथी एंड ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी इवन हो सकती है रेडियोथेरेपी से. क्रायोथेरेपी is only considered for small and superficial basal cell carcinoma. अगर हमने उसको डायग्नोज कर लिया एज ए सुपरफिशियल, हमें पता चल गया, उसके बाद उसमें हम क्रायोथेरेपी करेंगे. अदरवाइज इट इज़ एन एडजंक्ट टू सर्जरी एंड कॉम्प्लिकेशंस आर मैडरोसिस, स्किन डीपिगमेंटेशन एंड कंजंक्टिवल ओवरग्रोथ. इसमें केराटिनाइजेशन हो रही है, यहाँ पे ओवरग्रोथ हो रही है. फिर आईलैश डिसऑर्डर्स हैं. इसमें सबसे पहले आपको लिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं. कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर? मुलर मसल भी होता है इसमें. अगर हम सिर्फ लिड मार्जिन को देखें ना तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर हमारे पास है सिलिया, ग्रे लाइन, मेबोमियन ग्लैंड, म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन और कंजंक्टिवा. ठीक है, सिलिया होता है, उसके बाद ग्रे लाइन होती है, मेबोमियन ग्लैंड्स होते हैं, फिर उसके बाद म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन होता है, फिर कंजंक्टिवा होता है.
अब जो सिलिया होते हैं ना वो सुपरफिशियल एंड डीप पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओकुली के बीच में से उनकी ऑरिफिसेस जो हेयर फॉलिकल्स जो है ना वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड दे एग्जिट एट द एंटीरियर लिड मार्जिन एंड दे कर्व अवे फ्रॉम द ग्लोब। ये एक नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर वो मिसडायरेक्ट हो जाए तो फिर वो टच करेंगे कॉर्निया को, उससे क्या होगा? सिर्फ अगर माइनर प्रॉब्लम होगी तो पंक्टेट एपिथेलियल ओरिजिन्स, लेकिन अगर परसिस्टेंट है उसका क्रॉनिक है तो उसमें कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है, पैनस फॉर्मेशन हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉज। दिस इज ट्राइकिएसिस, मिसडायरेक्टेड लैशेस। मिसडायरेक्शन ऑफ ग्रोथ फ्रॉम इंडिविजुअल फॉलिकल्स, उसकी लिड जो है वो भी इन्वर्टेड नहीं है, उसके फॉलिकल्स भी सही पोजीशन पे हैं, लेकिन सिर्फ मिसडायरेक्शन है लैशेस की। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ट्राइकिएसिस के, मोस्टली कॉज क्या होता है उनमें हमारे पास जो आते हैं? एंट्रोपियन वाले भी होते हैं। ट्रकोमा के बाद बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे होते हैं ट्राइकिएसिस। इसके अलावा क्रॉनिक ब्लेफराइटिस है, हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस है, या क्लेजियन की सर्जरी कराई थी किसी ने, उसके बाद भी हो सकती है। और ट्रॉमा के बाद ट्रोमेटिक एंट्रोपियन या वैसे भी ट्रॉमा के बाद होते हैं। फिर है मार्जिनल और टोटल एंट्रोपियन में क्या फ़र्क होता है? अगर पार्शली मार्जिन इन्वर्टेड है तो उसको हम कहेंगे मार्जिनल एंट्रोपियन। अगर कंप्लीट इन्वर्जन है तो उसको हम कहेंगे कंप्लीट एंट्रोपियन। रोटेशन ऑफ सेगमेंट ऑफ लिड मार्जिन टुवर्ड्स आई ड्यू टू सिकेट्राइजेशन ऑफ द posterior lamella which leads to shortening of the posterior lamella in inversion of the lid। इससे क्या होता है कि जो नॉर्मली स्क्वायर शिफ्ट होती है posterior lid margin, इसकी वजह से राउंड शिफ्ट हो जाती है और म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन है उसकी माइग्रेशन एंटीरियरली हो जाती है, ठीक है। फिर है व्हाट इज दिस ट्राइकिएसिस? हाँ, डबल रो ऑफ लैशेस। कंजेनिटल भी हो सकता है, अक्वायर्ड भी हो सकता है। जो कंजेनिटल है दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड 5 इयर्स तक जो पेशेंट है दैट इज एसिम्प्टोमेटिक, 5 इयर्स के बाद सिम्टम स्टार्ट होते हैं। इट इज़ अ पार्शियल और कंप्लीट भी हो सकता है, पूरा रो ऑफ लैशेस भी हो सकता है, आधा रो ऑफ लैशेस भी हो सकता है। पार्शियल और कंप्लीट सेकंड रो ऑफ लैशेस बिहाइंड मेबोमियन ग्लैंड ऑरिफिसेस। अभी हमने कहा था ना मेबोमियन ग्लैंड ऑरिफिसेस के आगे पड़ी होती है लैशेस, अगर उसके पीछे भी एक रो है तो उसको हम कहेंगे दिस ट्राइकिएसिस। होता क्या है कि कंजेनिटल है क्योंकि तो कोई जर्म सेल का डिसऑर्डर है, जर्म सेल से बनना था मेबोमियन ग्लैंड लेकिन पूरा पाइलोसेबेशियस यूनिट बन गया, ठीक है। तो अब हेयर भी एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसमें हमने इसको डायग्नोज कैसे करना है कि कंजेनिटल है या डिस्ट्राइकिएसिस है? जो लैशेस होती है ना इसमें शॉर्ट होती हैं और थिन होती हैं एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल रो ऑफ लैशेस। अगर लिम्फेडीमा ऑफ द लिम्स भी साथ एसोसिएटेड है सो देन इट इज अ सिंड्रोम, लिम्फेडीमा डिस्ट्राइकिएसिस सिंड्रोम। अक्वायर्ड डिस्ट्राइकिएसिस लेटर ऑन होगा, कंजेनिटली नहीं होगा। इसमें क्या होता है मेबोमियन ग्लैंड्स का मेटाप्लेजिया हो जाता है इनटू द हेयर फॉलिकल्स। इट इज सिम्प्टोमेटिक और कॉज इसका कोई केमिकल इंजरी, कंजक्टिवल इन्फ्लेमेशन, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ऑक्यूलर सिकेट्रिशियल पेम्फिगॉइड, जो सिकेट्रिशियल डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें हो सकता है। इसमें भी शॉर्ट ही होती है लैशेस लेकिन नॉन पिगमेंटेड होती है, ये डिफरेंस है कंजेनिटल और इसमें अक्वायर्ड में। फिर एंट्रोपियन है, जैसे हमने कहा था कि फुल इन्वर्जन ऑफ लिड, प्रोफाउंड इन्वर्जन ऑफ सब्सटैंशियल विड्थ ऑफ लिड इज आइडेंटिफाइड एज अपोज टू मार्जिनल एंट्रोपियन, जिसमें सेगमेंट ऑफ लिड इन्वॉल्व था सिर्फ। फिर एपीब्लेफ्रॉन क्या होता है? ठीक है, ये भी कंजेनिटल है। इट इज़ कॉमन इन एशियन एंड हिस्पैनिक पॉपुलेशन। द आईलिड स्किन, जो सारी नीचे की स्किन है और जो प्रीटार्सल मसल है, इट राइज अबव द लिड मार्जिन, दैट्स व्हाई a horizontal fold is created which causes the eyelashes to assume a vertical position and this leads to constant touching of the eyelashes with the globe। अब ट्रीटमेंट, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं मोस्टली वो सर्जरी इवन इलेक्ट्रोएपिलेशन नहीं करवाना चाह रहे होते हैं, तो हम टेम्परेरीली उनकी कंप्लेंट को रिड्यूस करने के लिए, फॉरेन बॉडी सेंसेशन और इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए हम एपिलेशन कर देते हैं, मैनुअल एपिलेशन कर देते हैं। बट इट इज़ अ टेम्पराइजिंग मेजर एंड उसके बाद रिकरेंस होनी ही होनी है क्योंकि हेयर फॉलिकल को तो आपने कुछ किया नहीं है, वो वहीं का वही है। उससे बेहतर जो है दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड electrocautery, electroepilation, hyperification. It is more effective than epilation because we are
बर्निंग द हेयर फॉलिकल्स। तो सबसे पहले हम सबक्यूटेनियस ब्लॉक लगाते हैं लिड पे, ठीक है। उसके बाद माइक्रोमीटर फाइन नीडल इज पास्ड इनसाइड द हेयर फॉलिकल and chemical reaction occurs after electric discharge is passed through it. Chemical reaction is tissue saline into sodium hydroxide, and sodium hydroxide is a caustic agent. It causes chemical destruction of the hair bulb, ठीक है। बट हम ये लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लैशेस के लिए ही कर सकते हैं, और इसके लिए कई दफ़ा मल्टीपल ट्रीटमेंट्स भी रिक्वायर्ड होती हैं। बट अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो फिर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा भी है एक लेज़र एब्लेशन, उसके अंदर हम लेज़र अप्लाई करते हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोकॉटरी। लेज़र की सेटिंग्स क्या होती हैं? स्पॉट साइज इज 50 माइक्रॉन मीटर बिकॉज हेयर फॉलिकल का साइज ही उस हिसाब से। ड्यूरेशन 0.1 to 0.2 सेकेंड्स और पावर 800 to 1000 मिली वॉट्स। इट इज़ ऑल्सो अप्लाइड टू लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लैशेस। इसमें हम बेस ऑफ लैश को टारगेट करते हैं और क्रेटर क्रिएट करते हैं। वहाँ पे हम रिएक्शन क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे क्रेटर क्रिएट कर रहे हैं, एंड इट इज़ almost equally successful as electroepilation. फिर सर्जरी है, मार्जिनल एंट्रोपियन जो होता है ना, उसके लिए सर्जरी हम कर रहे होते हैं। फर्स्ट सर्जरी टार्सल फ्रैक्चर है, फिर फुल थिकनेस पेंटागन रिसेक्शन है, फिर कुछ और ऑप्शंस भी होती हैं। टार्सल फ्रैक्चर का दूसरा नाम क्या होता है? ट्रांसवर्स टार्सोटोमी। इट इज़ द प्रोसीजर दैट इज परफॉर्म फॉर मार्जिनल एंट्रोपियन। इसमें हमने करना क्या होता है? सबसे पहले हम ट्रैक्शन सूचर अप्लाई करेंगे, ये वाला। उससे क्या होगा कि लेडी वर्ट हो जाएगी, उसको पुल करेंगे अवे फ्रॉम द ग्लोब। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे टार्सल प्लेट को। जो टार्सल प्लेट का मिड पॉइंट होगा ना, वहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगा देंगे। हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगाने के बाद हम 2 to 3 डबल आर्म एब्जॉर्बेबल सूचर्स उस टार्सल प्लेट के लोअर पार्ट के अपर एंड में से गुजारेंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से भी ट्रैक्शन अप्लाई हो जाएगी। उस ट्रैक्शन की वजह से ये वाला पोर्शन जो है इवर्ट होगा और आईलैशेस जो है वो अवे फ्रॉम द ग्लोब डायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम केस को क्लोज कर देंगे, यही बताया हुआ। ट्रैक्शन सूचर 40 अप्लाई करेंगे, हॉरिजॉन्टल इंसिजन हाफ फीट डाउन द टार्सल प्लेट। इट इज़ एक्सटेंडेड अकॉर्डिंग टू द extent of the entropion, extended 2 to 3 millimeter, 2 to 3 double armed absorbable sutures applied, lid margin inverted. बट इसमें एक्सपोजर कॉर्निया का हो सकता है, तो इस एक्सपोजर ग्रेटोपैथी हो सकती है। तो BCL इज अप्लाइड शॉर्ट टर्म टू प्रिवेंट कॉर्नियल एब्रेजन। ये टार्सल फ्रैक्चर था। उसके अलावा फुल थिकनेस पेंटागन एक्ससिजन हमने जैसे पहले भी किया था ना डायरेक्ट क्लोजर वाली स्लाइड में। इसमें क्या करना है, सिर्फ जहाँ पे हमें लग रहा है कि एबरेंट आईलैशेस हैं, जो पोर्शन है मार्जिनल एंट्रोपियन वाला, उसमें हम पेंटागन शेप एक्ससिजन कर देंगे और उसको हम डायरेक्ट क्लोजर कर देंगे बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल डिफेक्ट फॉर लोकलाइज मार्जिनल एंट्रोपियन। अदर ऑप्शन इज लिड स्प्लिटिंग विद फॉलिकल एक्ससिजन। हम उस फॉलिकल को ही एक्सरसाइज कर दें, या फिर एंटीरियर लेमेलर रोटेशन सर्जरी। Cryotherapy is almost obsolete now, but it used to be performed in this type cases. ये न्यूमरस फ्लैशेस के लिए होती है। उधर हमने कहा था एपिलेशन, इलेक्ट्रोएपिलेशन स्मॉल नंबर ऑफ फ्लैशेस के लिए होती है, ये न्यूमरस फ्लैशेस के लिए होती है। इसमें डबल फ्रीज थॉ साइकिल होता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो क्रायोस्टैट का टेम्परेचर था -25, इसका -20 डिग्री सेंटीग्रेड है अंडर लोकल एनेस्थीसिया ऑब्वियसली एंड एड्रेनालिन। इसमें करना क्या होता है कि जो एंटीरियर लेमेला होता है उसको हम पहले ग्रे लाइन पे हम स्प्लिटिंग करते हैं इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेमेला, ठीक है। एंटीरियर लेमेला की जो इंटरनल एस्पेक्ट होता है ना कंजंक्टिवल, उस पर हम अप्लाई करेंगे इंफीरियर टू द बेस ऑफ द एबनॉर्मल आईलैशेस क्रायोथेरेपी। व्हाट इज दिस? ऐसे इतनी अच्छी पिक्चर है नहीं, ये आईलैशोसिस है, ठीक है। Eyelashosis is sagging of the eyelashes instead of the upper lid margin, ठीक है। सिर्फ eyelashes जो है ना, वो जब सैग करेंगे इसको कहेंगे eyelashosis। अब डिफरेंस फ्रॉम टोसिस क्या है इसका? टोसिस और eyelashosis में क्या फ़र्क होता है? टोसिस तो पूरी लिड मार्जिन की डूपिंग है ना, ये सिर्फ eyelashes की डूपिंग है।
लेट वहीं पे रहेगी, आई लैशेस नीचे सैग डाउन कर देंगे। इसके ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 0 का मतलब है कोई एलास्टोसिस नहीं है। लैशेस रिलेटिव टू द अपर लिड मार्जिन इज बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लैशेस हैं, वो नीचे की तरफ नहीं आ रही, ठीक है, 0 डिग्रीज और अबव द हॉरिजॉन्टल। ग्रेड 1 माइलास्टोसिस, पोजिशन ऑफ लैशेस अपर लिड 0 to 30 डिग्रीज बिलो द हॉरिजॉन्टल। जितनी नीचे आती जाएंगी उतना ज़्यादा ग्रेड होता जाएगा। उसके बाद मॉडरेट में क्या होता है 31 to 45 डिग्रीज, और सवेयर में क्या होता है मोर देन 45 डिग्रीज। तो ग्रेड 2 और 3 जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। कॉजेज़ क्या होते हैं एलास्टोसिस के? बुक से बता दो। हाँ, फ्लॉपी आईलिड सिंड्रोम, dermatochalasis, लॉन्ग स्टैंडिंग फेशियल पैल्सी, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स में एक और चीज़ भी होती है, वो क्या होती है? और आईलैश लेंथनिंग होती है। अब ये देखिए dermatochalasis हुआ हुआ है, उसके साथ आईलैशडोसिस हुआ हुआ है। बहुत सारे पेशेंट जाते हैं इस तरह की dermatochalasis वाले तो। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग की वजह से एक पेशेंट है जिसकी आईलैशडोसिस हुआ है। ट्राइकोमेगाली इज एक्सेसिव आईलैश ग्रोथ। कॉजेज एक तो हमने बता दिए, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। ड्रग इंड्यूस्ड हो सकते हैं जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हैं, फेनेटोइन, साइक्लोस्पोरिन। एड्स एंड मैलन्यूट्रिशन, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी होता है, और कंजेनिटल कुछ सिंड्रोम्स होते हैं। फेमिलियल बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है पूरी फैमिली के अंदर ही। ऑलिवर मैकफार्लेन, कॉर्नेलिया डिलैंस, गोल्डस्टीन, हर्ट और मैंस्की फुड सिंड्रोम। Madarosis is loss of eyelashes. इसके क्या कॉजेज होते हैं? ब्लेफराइटिस, ठीक है, यहाँ हमने खुद ही रिमूव कर दिया, जैसे डाइकियासिस मैकुलेशन। लोकल कॉजेज हो सकते हैं स्किन डिसऑर्डर्स, सिस्टेमिक एंड फॉलोइंग रिमूवल। लोकल कॉजेज में जैसे आप लोगों ने बताया ब्लेफराइटिस या लिड ट्यूमर्स हैं इन्फिल्ट्रेटिंग, तो उस एरिया को वहाँ से मैडरोसिस हो जाएगा। यहाँ हमने रेडियोथेरेपी की है, क्रायोथेरेपी की है, सर्जरी की है, या लिड ट्यूमर है वहाँ पर, या बर्न पेशेंट में भी होता है। स्किन डिसऑर्डर में कि उसकी पूरी बॉडी में एलोपेशिया हुआ हुआ है तो उसकी आईलैशेस भी लॉस हो जाएंगी। सोराइसिस में भी। सिस्टेमिक डिजीजेज है मिक्सोडीमा, SLE, सिफिलिस, लेप्रेसी एंड फॉलोइंग रिमूवल। ट्राइकेसिस के लिए जो हम करते हैं एपिलेशन, इलेक्ट्रो एपिलेशन। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, वो खुद अपनी आईलैशेस को प्लग करते हैं, हेयर को प्लग करते हैं ओवरऑल, इसको कहते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया। व्हाट इज स्पोलियोसिस? लैशेस एंड आईब्रोज, दोनों चीज़ें। कॉजेज इसके क्या होते हैं? एक तो हमने पढ़ा भी हुआ यूवीआइटिस का एक कॉज कौन सा? ऑक्यूलर कॉजेज हो सकते हैं, सिस्टेमिक कॉजेज हो सकते हैं। ऑक्यूलर में वही ब्लेफराइटिस की वजह से भी होता है, सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस, इडियोपैथिक यूवीआइटिस। सिस्टेमिक है वीकेज क्योंकि इसमें और पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, हेयरिंग लॉस भी होता है इसमें। फिर वार्डनबर्ग सिंड्रोम एक होता है, इसमें पूरा एक फोरलॉक वाइट होता है, विटिलाइगो के पेशेंट्स में होता है। मार्फन सिंड्रोम और ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। A 50-year-old man has BCC of the medial canthus involving the medial rectus. This condition is best managed by which one of the following? Cryotherapy, exenteration, irradiation, Mohs surgery. Mohs surgery और medial rectus भी है। इंट्राऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट हो गई ना, तो फिर हम क्या करेंगे? Cryotherapy is reserved for small superficial BCC, जैसे हमने कहा था। Irradiation is substitute to surgery, not the best treatment. इसने कहा था best treatment. MMS, Mohs microsurgery is preferred in cases of medial canthal tendon BCC without intraorbital involvement, and medial rectus involvement का मतलब है कि spread हो गया intraorbitally, तो उसमें हम फिर about trichiasis, all of the following are true except ऑक्यूलर सरफेस डिजीज ही कराएगा ना, ड्राई आई
Trichiasis is backward misdirection of lashes which causes ocular surface disease. This may lead to dry eye and keratopathy. Here, a 60-year-old farmer develops lesion of right lower lid near medial canthus. Diagnosis. और इसमें क्या चीज़ है जिससे पता चल रहा है कि बेसल सेल है? एक तो ओल्ड एज है, उसके बाद मेल है, उसके बाद लोअर लिड है, उसके बाद मीडियल कैंसर है, सन एक्सपोजर है, ये सारा कुछ बीसीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स. Which of the following drugs does not cause trichomegaly? ये सारे ड्रग्स हैं जो करवा लेते हैं ट्राइकोमेगाली. प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स जो है ना वो करवाते हैं. ठीक है. सिटुक्सिमैब, हिमाटोट्रोस्ट, लेटानोप्रोस्ट, फेनेटोइन, मिनॉक्सिडिल. मिनॉक्सिडिल जो है हेयर फॉल उसके लिए यूज होता है. साइक्लोस्पोरिन, टोपिरामेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. पेनिसिलिन कराती है, पेनिसिलिन नहीं कराती. Which of the following syndrome causes scoliosis? Hallmark of BKH is bilateral granulomatous panuveitis with associated serous retinal detachments accompanied by poliosis and hearing loss. Take-home message is BCC in most cases requires simple excision with 2 to 4 millimeter clear margin. Mohs micrographic surgery is reserved for tumours with indefinite margins and diffuse growth. Trichiasis should be treated with electroablation to prevent recurrence. Poliosis, madarosis and trichomegaly are important signs of important systemic diseases, तो इसलिए हमें हमेशा रूल आउट करना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ना. ठीक है. References. So, you see, when you encounter a lid mass, the most important thing is to differentiate between a benign and a malignant lesion. See, so what are the indications of malignancy? हाँ जी, indefinite borders, rapid growth, एनकैप्सुलेटेड नहीं होगा, डिफ्यूज टाइप है, बॉर्डर्स आपको पता नहीं चले, इरेगुलर, और लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, डिस्टॉर्शन ऑफ लिड आर्किटेक्चर, नॉर्मल टिश्यू नहीं होगा, कुछ मिक्सचर सा हुआ हुआ है. एनीथिंग एल्स? अल्सरेशन, ओके, hyperkeratosis, change in the color, increased vascularity, pigmentation, scattered pigmentation. So, oh, right, old age. So you have to make a decision whether it goes into a malignant category. Then you have to make a 4 to 5 millimeter of healthy margin resection. So you don't want to lose or waste the healthy tissue, but you want to ensure that all of the tumor is taken out. Because if you leave some part of it, it will recur. So the best approach is to have coordination with the histopath people, so that now you see this frozen section technique, the result is available in half an hour. There are many, we are fortunate to have a laboratory, a Mughal laboratory just in front of our eye hospital. So we can make liaison with the histopathologist and we can demand that please give us an early report so that we can complete the surgery. So otherwise, if it when it was not available here, we had arrangement with a private laboratory, and the tissue specimen was taken by a motorbike person, and the report was available in half an hour. So instead of doing reconstruction, we can ensure that all of the tumor is removed and then reconstruction is done. You see, so this is the main problem.
as far as Most micrographic surgery का थोड़ा सा बताओ. वो जो आपने बताया वही है कि वी वांट that healthy tissue is not wasted, so we remove one layer of the tissue and expose it to the histopathological examination. If it is free of the tumor cells, we do the reconstruction. If it has the tumor cells, we remove another layer. So until the time when the resected tissue is free of tumor. So basically, it requires repeated frozen sections so that we have the reconstruction at the same time. So, coming to this eyelash disorders, the most important thing is the decision that the eyelash is touching the cornea. So if there is trichiasis, we have to address it. Otherwise, it will create corneal opacity and the vision will be blurred. See, मैं से एग्जांपल देता हूँ जैसे कि विंड स्क्रीन के ऊपर अगर कोई लोहे के कील से स्क्रैच करे तो वो विंड स्क्रीन खराब हो जाएगी, ठीक है ना, और फिर वो दोबारा ठीक नहीं होती. सो कॉर्निया इज सच अ सेंसिटिव टिश्यू कि उस पर अगर आई लैशेज कुछ दिनों तक या कुछ वीक्स तक रब करती रहेंगी तो कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी. सो हमारे पास क्या प्रोसीजर होते हैं, एपिलेशन या इलेक्ट्रो एपिलेशन. तो अ फ्यू जब आई लैशेज प्रॉब्लम कर रही हो और ये जो स्प्लिटिंग द लिड इन टू लेयर्स थ्रू lamella anterior and posterior, and then the eyelashes which are present in the tarsal plate or Meibomian gland, we can either pick them up and excise them so that the posterior lamella is clear of all the eyelashes, or we can apply the cryotherapy. What is how the cryotherapy works on these abnormal hair follicles? Freeze और करके. So rapidly dividing cells are destroyed first. ठीक है, नॉर्मल टिश्यू नहीं डिस्ट्रॉय होता. वाई? कि उसका रेप्लिकेटिंग टाइम ज़्यादा है. तो हेयर फॉलिकल में माइटोटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो रीग्रो कर रहा होता है, रीजनरेट. सो बेसिकली क्रायो डिस्ट्रॉयज दैट, नॉर्मल टिश्यू बच जाते हैं. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रायो. तो हम या क्रायो अप्लाई करते हैं या सर्जिकली एक्साइज करते हैं ऑल द एबनॉर्मल आई लैशेज. एपीब्लोफ्नॉन का आपने देख लिया कि एक फोल्ड ऑफ स्किन है और उसकी ट्रीटमेंट में जो फोल्ड ऑफ स्किन है, स्किन और ऑर्बिकुलरिस, उसको एक्साइज कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड हॉट्स प्रोसीजर. ठीक है. जबकि एंट्रोपियन में देयर आर टू मेन फैक्टर्स. वन इज हॉरिजॉन्टल लिड लैक्सिटी. हॉरिजॉन्टल लिड लैक्सिटी कैसे चेक करते हैं? How do you check horizontal lid laxity? You pull the lid, lower lid, away from the globe. If you can pull it more than 6 millimeter, the lid is lax. Then you just release the pulled eyelid. If it snaps back into its normal position, the lid is normal. If it does not snap back, it means the lid is lax. Then you move the lid medially and laterally and see how much you can move the punctum. If the punctum can reach the medial limbus, it means there is medial tendal or canthal laxity. So these are called distraction test, snap test, and pinch test. Pinch, snap, and distraction test. Distraction is medial, distraction and lateral. So this tells you how much lax is the lid. So if lid is lax, what do? You lateral tarsal strip, LTS. Previously, we used to excise portion of the center of the lid, but then the scar comes just in front of. You see, we want the scar to be at the side of the face. So LTS is the most successful procedure being done nowadays.
And there is one additional element in entropion. The upper margin of the lid moves in senile end. Why? Because the inferior lid retractors become weak. So we do extra suturing of the inferior lid retractors to the tarsal plate. This is called strengthening of the inferior lid retractors. The cicatricial entropion is because of the scarring of the mucosa. So we will have to do what? Excision of the scar and replacement with mucosa. Any question?